دوستوں میں آپ سب کو سلام اینڈ گڈ ایوننگ. میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے. خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار کی مانند ہے اور صرف آزاد کرتا ہے. خدا کا کلام صرف کیا کرتا ہے؟ آزاد. میں ایسے کسی بھی شخص کو نہیں جانتی جو اپنی زندگی میں کہے کہ میں خدا کے کلام کی وجہ سے قید میں آ گیا. اور اگر کوئی خدا کے کلام کی وجہ سے قید میں آ رہا ہے تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے نظریے سے خدا کے کلام کو پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, نہ کہ پاک روح جو اس کو سکھانا چاہ رہا ہے اس کے تھرو پڑھ رہا ہے. کیونکہ آج تک جتنا کلام میں نے پڑھا اس کلام نے, زندہ کلام نے مجھے زندگی دی. یہ زندہ کلام ہے اس لیے یہ صرف زندگی دے سکتا ہے. یہ مردہ کلام نہیں, کیونکہ جو چیز پہ آپ میڈیٹیٹ کریں گے وہ کیا ہے وہ ویسے ہی ریزلٹس آپ کی زندگی میں پروڈیوس کرے گی. تو یہ زندہ کلام ہے اور یہ صرف زندگی بخشے گا. اگر یہ زندہ کلام نہ ہوتا ہم اسے زندگی ایکسپیکٹ نہ کرتے, لیکن یہ زندہ کلام ہے, یہ قائم ہے اور یہ دائم ہے. امثال کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 17 سے 28 آیت تک ہم پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے, راست گو صادق ظاہر کرتا ہے. صادق کا مطلب کیا ہے؟ راست باز شخص, جو خدا یسوع مسیح میں راست باز ہے. کہتا ہے راست گو صادق ظاہر کرتا ہے لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی. راست گو صادق ظاہر کرتا ہے, صداقت ظاہر کرتا ہے, لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی. اگر کوئی, غور کیجیے گا یہاں پر یہ بات ہے کہ جو منسٹری آف گریس نہیں کر رہے, جو لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ وہ راست باز ہیں خداوند یسوع مسیح میں, وہ دغا بازی کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کی کنگڈم کال سے. کہتا ہے راست کو, پھر کہتا ہے بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں, لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے. سچے ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہیں گے, لیکن جھوٹی زبان دم بھر کی ہے. بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے, لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے. صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی. آپ اس کو خوف میں, لیکن آپ خوف میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ صادق ہیں تو آپ کو اس خوف میں نہیں آنا, کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے یعنی شیطان, وہ دھاڑنے والے شیر کی مانند ہے. وہ شیر ہے نہیں, وہ دھاڑنے والے شیر کی مانند ہے. فار ایگزامپل, آپ یوٹیوب پہ شیر کی دھاڑنے کی آواز لگا سکتے ہیں اور ٹیمپرری کسی کو ڈرا سکتے ہیں, لیکن اگر شیر سامنے نہیں آ رہا تو وہ انسان کب تک ڈرے گا؟ اگر شیطان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوتا تو وہ آپ کا انتظار نہ کر رہا ہوتا, بلکہ وہ کب کا آپ کو نقصان پہنچا چکا ہوتا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ صرف آپ کے دل میں اس نقصان کا خوف ڈالتا ہے تاکہ آپ اس نقصان کے خوف کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ, آپ اس نقصان کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ, اور the moment آپ سوچو گے آپ گر جاؤ گے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, یہ بھی اس پہ بھی ہم رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہم دوسرے بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے. مرکز اس کے 4 باب اس کی 35 آیت میں لکھا ہے, اور اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں, اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ چلے, اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. اب کشتی کو آپ اسی طرح امیجن کر لیں کہ آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ہے, لیکن طوفان آ گیا ہے. اب جب طوفان آ گیا ہے تو اس طوفان کو روکنے کے لیے
وہ پہلے بھی یسوع مسیح کو اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہ تب یسوع مسیح کو اٹھاتے ہیں جب کشتی پوری بھر جاتی ہے اور ڈوبنے لگتی ہے۔ اس سے پہلے کیونکہ وہ سیزنڈ فشرمین ہیں، ان کو پتہ ہے کشتیاں کیسے چلانی ہیں، ان کو پتہ ہے مچھلیاں کیسے پکڑنی ہیں، وہ پانی پر ہی کام کرتے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی شاید اپنی زندگیوں میں ایسے کوئی طوفان دیکھے ہوں گے، تو انہوں نے پہلے ریمیڈیز لگائی ہیں کیونکہ کشتی کو ہلکا رکھنا ہوتا ہے۔ یقیناً وہ کشتی میں سے پانی نکال کر باہر پھینک رہے ہیں، لیکن اس طوفان کا حل وہ جسمانی لیول پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں ریپیٹ کروں گی، آپ کی زندگی میں بھی شاید ایسا ایک طوفان ہو سکتا ہے جس کا آپ جسمانی حل ڈھونڈ رہے ہو۔ اگر آپ اس کا جسمانی حل ڈھونڈ رہے ہو تو آپ کبھی بھی یسوع مسیح کو نہیں اٹھاؤ گے، اور آپ کیا ہو گے؟ آپ یسوع مسیح کو نہیں اٹھاؤ گے اور آپ نقصان اٹھاؤ گے۔ نقصان کیا اٹھاؤ گے؟ شاید اس کشتی میں ان کا قیمتی سامان پڑا ہوتا، سنیے گا غور سے، شاید اس کشتی میں ان کا قیمتی سامان پڑا ہوا تھا جو سارا گیلا ہو گیا، وہ سامان گیلا ہو گیا، ان کا خراب ہو گیا۔ کیا پتا جب کشتی میں پانی اتنا بھر گیا تو وہ سامان بہہ کر پانی سمندر میں گر گیا۔ ان کا جو فرسٹ اٹیمپٹ تھا وہ اپنی پاور پر یقین تھا، وہ خوف میں آئے، خوف میں انہوں نے ایکشن لیا، انہوں نے جلدی جلدی پانی بھی نکالا، کوشش کی، لیکن وہ طوفان، ان جسمانی بندہ طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا سمندر میں طوفان آیا اور کوئی اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے روک لی؟ کیا کبھی کوئی انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے بارش کو اپنے اوپر گرنے سے روک سکتا ہے؟ ایون وہ چھتری بھی لے لے، وہ رین کوٹ بھی لے لے، وہ پھر بھی گیلا کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کی جو بیٹلز ہیں آپ ان کو نیچرل لیول پر آ کر سولو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تبھی آپ کو سکسیس نہیں مل رہا، بلکہ آپ کی کشتی بھری جا رہی ہے، کانسٹنٹ بھری جا رہی ہے۔ آپ طوفان میں کھڑے ہو کر ہی طوفان کے اندر ہی پانی پھینکے جا رہے۔ اٹس جسٹ لائک دیٹ کہ وہ پانی کے اندر ہی تھے اور پانی کے اندر ہی پانی نکال کے پھر پھینک رہے اور پھر پانی بھر جاتا۔ ان کو پانی سے ابو ہونے کی ضرورت تھی، اور ابو جو تھا گریٹر ون ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گریٹر ون کیا کرتا ہے؟ جو گریٹر ون آپ کے اندر ہے، اور اس دن کشتی ڈوب بھی سکتی تھی لیکن ڈوبی کیوں نہیں؟ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ صادق کے خلاف کوئی بھی ہتھیار جو بنایا جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور وہاں پر صادق کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح۔ اب وہ یسوع مسیح کدھر ہے؟ ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر وہ ریزائڈ کر ہے، اور جب ہم صادق ہیں تو کوئی بھی ہتھیار جو آپ کے اور میرے خلاف بنایا جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے، آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ جو فیئر ہے وہ آپ کو، اگر یسوع مسیح فیئر میں ہوتا تو یسوع مسیح اتنے اطمینان میں کبھی نہ سو رہا ہوتا، لیکن یسوع مسیح کو کوئی فیئر نہیں کہ اگر یسوع مسیح نے، خدا نے کہا ہے کہ اس پار جاؤ، تو اس کو پتا ہے کہ وہی خدا ہمیں اس پار بھی لے کے جائے گا، چاہے پھر بیچ میں طوفان آ جائے، شیر آ جائے، جنگلی جانور آ جائے، کوئی بلا آ جائے، ہم اس پار پہنچ جائیں گے۔ اس کے لیے خدا کے ورڈ کی ویلیو ہے، نہ کہ اس طوفان کی۔ اور خدا کا کلام کہتے ہیں افسیوں کے خط اس کے 6 باب میں، خدا کی مانند بنو۔ کیا خدا پین کو دیکھ کے پینک کرتا ہے؟ کیا خدا بلا کو دیکھ کے فیئر کرتا ہے؟
खुदा क्या करता है? सेम रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? आप में से बहुत से इस वक्त जब पेन में हैं, जब फियर में हैं, तो यू आर ब्लेमिंग गॉड कि अगर खुदा सब कुछ देख रहा है तो वो खुद ब खुद ठीक क्यों नहीं कर देता। जब आप गुनाह करते हैं तो खुदा का दिल आप तब्दील नहीं करते। खुदा ने एक दफा कह दी ना, मैं तेरे गुनाहों को और तेरी बदकारियों को और तेरी खताकारियों को, क्या होता, खताकारियों कोई वर्ड नहीं होता, खताओं को फिर हरगिज याद ना करूंगा। तो एग्जैक्टली वो हरगिज याद नहीं करेगा। उसका चेंज, आपके एक्शंस उसका हार्ट चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आपके एक्शंस आपका हार्ट चेंज कर रहे हैं। खुदा नहीं खत्म कर सकता कुछ चीजों को जब तक कि आप कुछ चीजों को खत्म नहीं करना चाहते। और आज ही मैं किसी को सिखा रही थी, आप अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे फेजेस में से गुजरेंगे जहां पर आप खौफ ज़दा होंगे, लेकिन उस वक्त खुदा आपके दिल में से वो दरख्तों, खुदा आपके दिलों में से दरख्तों को उखाड़ेगा। लेकिन कैसे? जब आप उखाड़ने के लिए दो धारी तलवार का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूं, आपके दिलों में जो दरख्त खुदा बाप ने नहीं लगाए, उनके लिए एक ही हथियार है, और वो दो धारी तलवार है जो कि खुदा का कलाम है। और वो दो धारी तलवार उन दरख्तों को काटेगी भी और उखाड़ेगी भी। कभी कभी हम ऑन द स्पॉट कलाम सुनते हैं और वो दो धारी तलवार कलाम के जो उस सुने मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करी। आपके दिल में कुछ पुराने दरख्त लगे हुए जो खुदा बाप ने नहीं लगाए। आप जैसे ही कलाम सुनते हैं, दो धारी तलवार काम करती है, और वो जो उसके फल होते हैं वो उनको तमाम को झाड़ देती है, काट देती है, पत्ते भी झड़ जाते हैं, टहनियां भी झड़ जाती हैं, लेकिन अभी तक वो जड़ से उखड़ा नहीं होता। आप एक दिन कलाम सुनते हैं, आप देखते हैं आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं, आप कहते हैं हाँ जी मैंने कलाम सुना था और मैं इस पर फोकस किया, आज मेरी जिंदगी के रिजल्ट्स डिफरेंट है। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको दोबारा सेम चैलेंज का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि आप मुसलसल दो धारी तलवार से उस दरख्त को जड़ से नहीं काट रहे होते। आप मुसलसल दो धारी तलवार से उस जड़ को नहीं काट रहे, तभी क्या होता है, वो अगले सीजन में फिर बढ़ जाती है। वो दरख्त अगले सीजन में फिर आ जाता है और आपको फिर सेम चैलेंज का सामना करना पड़ता है। और जब तक दरख्त है वो फल भी देगा, और फिर जब आप खुदा के इंस्ट्रक्शन से बाहर हैं तो वो क्या फल देगा? वो आपकी लाइफ में ट्रेजेडीज लाएगा, वो आपकी लाइफ में पेन लाएगा, वो आपकी लाइफ में ट्रबल लाएगा। और उस ट्रबल से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो धारी तलवार को अपने साथ रखना होगा, ताकि जैसे ही कोई ऐसी जड़ निकले जो खुदा के कलाम की तरह से नहीं है, आप उसको फौरन से काट डालें। अगर खुदा का कलाम तलवार कहते हैं, दो धारी तलवार, हाँ, अगर खुदा का कलाम तलवार जैसा काम ना करता था तो खुदा अपने कलाम को तलवार से कभी तशबीह ना देता। खुदा का कलाम ना सिर्फ तूफानों को थमा सकता है, बल्कि शेरों के मुंह को बंद भी कर सकता है, आसमान से आग भी ला सकता है, किसी ऐसी झाड़ी को आग भी लगा सकता है कि झाड़ी भी ना जले और आग भी जलती रहे। आपका खुदा बादल के सतून में भी आपके साथ रह सकता है, और आप बादल में भी रह सकता है और आग के सतून में भी आपके साथ रह सकता है। आपका खुदा का जो वर्ड है वो बहरे कुलज़म के भी दो हिस्से कर सकता है, पत्थर से पानी निकाल सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, कोड़ियों को पाक साफ कर सकता है। जिसके पास दौलत नहीं उसके लिए इंस्टेंट दौलत को क्रिएट कर सकता है। अगर किसी के पास खाना नहीं तो आसमान से मन बरस सकता है, हवाओं का रुख तब्दील कर सकता है, परिंदों को हुक्म दे सकता है कि वो आपके लिए गोश्त और पानी लेकर आए, वो फरिश्तों को हुक्म दे सकता है, और ये सब कुछ वो कर सकता है।
آپ کسی بھی سچویشن میں، ہر سچویشن کے لیے صادق کے لیے خدا کے کلام میں کلام ہے. جب تک آپ نیچرل دیکھیں، اگر پطرس، یوحنا اور یہ سب کچھ نکلنا چاہتے تھے نا طوفان سے، تو طوفان سے نکلنے کا ایک ہی حل تھا. وہ یہ تھا کہ یا تو پھر ان کو کوئی آ کے بچا لے، کشتی باہر طوفان سے، مینس کو کشتی کو دریا سے ہی اٹھا کے رکھ دو کوئی اور، پھر تو وہ نکل سکتے تھے. اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو طوفان میں کھڑے ہو کے، جب طوفان کا پانی دیکھو، کبھی کبھی آپ کی زندگی کے طوفان ایسے ہوتے ہیں کہ پانی چاروں طرف سے آ رہا تھا کشتی کے اندر، آپ کس طرف کا پانی روکیں گے؟ کیونکہ آپ پوزیشن ہی غلط میں کھڑے ہیں. تبھی آپ کی بوٹ سنک کرنے والی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی ڈائریکشن ہی، پوزیشن ہی غلط ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پلیز اپنی سائڈ سے میوٹ کیجیے گا. اچھا، تو خدا کیا کرے گا؟ خدا، یو نیڈ جیزس ان یور بوٹ. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، بہت سارے مین آف گاڈ نے اس بات پہ بہت دفعہ پریچ کیا ہوا ہے. یو نیڈ جیزس ان یور بوٹ، یو نیڈ جیزس ان یور بوٹ. بٹ آئی سے یو ہیو جیزس ان یور بوٹ. Go and call him out. Reach him. آپ کے پاس یسوع ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی دیر تک کشتی کے میں پانی کو آنا الاؤ کرنے دیتے ہو. پاسبلٹی یہ تھی کہ جیسی پہلی دفعہ طوفان آیا تھا، وہ تب بھی اٹھا سکتے تھے یسوع مسیح کو اس سچویشن کے لیے. لیکن پہلے ان کو لگا یسوع مسیح اور پانی، اس نے تو کبھی پانی پہ کام نہیں کیا، یہ تو لکڑ ہار ہے، کارپینٹر کا بیٹا ہے، اس کو کیا پتا پانی کا کیا کرنا ہے. اس کو استاد مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ایکسپیرینسڈ سمجھتے ہیں. You can be experienced in some things, but you can never supersede the experience of God's word. آپ خدا کے کلام کے تجربے کو اپنے تجربوں سے اوپر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ کا اور میرا خدا بھسم کرنے والی آگ بھی رکھتا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ And what do you think؟ انہوں نے پیار سے کہا ہوگا، وہ بہت پینک کی سچویشن میں، کیونکہ وہ بہت بڑا ورڈ یوز کریں، ہلاک ہوئے جاتے ہیں. یعنی کہ ابھی کشتی ڈوبے گی اور ہم میں سے کسی کو تیرنا نہیں آتا اور اب ہم سب مر جائیں گے. وہ اتنے پریشان ہو گئے خوف میں، اور تبھی وہ ایسے ورڈز بولنے لگے. اور وہ کس پہ بلیم پھینک رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح پر. تجھے فکر نہیں ہے. بندہ پوچھے، طوفان کیا خدا نے بھیجا تھا؟ اچھا مجھے بتائیں، وہ یسوع مسیح کو ایسے کہنے تجھے فکر نہیں جیسے طوفان یسوع مسیح نے بھیجا. غور کیجیے، آپ بھی تو سیم کام کر رہے ہیں. جب آپ بیمار ہیں، آپ سیڈ ہیں، آپ اپریسڈ ہیں، آپ کی زندگی میں پریشر ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں خدا کو ہماری فکر نہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. آپ کی زندگی میں امن تب ہوگا when you are applying، جب آپ وہ فارمولا لگا رہے ہو جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. نہیں تو آپ کل بھی اس مسئلے میں پھنسے رہیں گے، آپ آج بھی اس مسئلے میں پھنسے رہیں گے، آپ پرسوں بھی اس مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، آپ آج بھی اس مسئلے میں پھنسے ہوئے، اور آپ کل بھی اسی مسئلے میں پھنسے رہیں گے، کیونکہ آپ اس مسئلے کو نیچرل لیول پہ، ورلڈ سسٹم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور ورلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں سے پوچھ کر چل رہے ہیں. لیکن the moment جیزس فارمولا لگا تو ہوا تھم گئی، طوفان رک گیا اور پانی بالکل پیسفل اور کام ہو گیا. اور یہ آپ کی زندگی کے میٹرز ہیں، آپ کی زندگی کے ایشوز ہیں. فیئر میں آپ سب سے پہلے اس کو ریچ آؤٹ کرتے ہو. اس کے بعد وہ کہتا ہے، پھر
उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? गौर कीजिएगा, आप क्यों डरते हैं? आपका डर आपको मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम पर खड़े नहीं होने देता, क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने पूरा तवज्जो खुदा के कलाम पे लगा ली तो कहीं आप डूब ना जाएं, क्योंकि आप खुदा के कलाम को वैल्यू नहीं दे रहे, आप पावरफुल नहीं समझ रहे, तभी आपको लगता है कि चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। यही फर्क है मेरे और आपकी अप्रोच में, यही फर्क है मेरे और आपके तजर्बे में, मेरे और आपकी प्रायोरिटीज में। यही फर्क है, क्योंकि आप उसको बिल्कुल नेचुरल लेवल पे आके देख रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जंगों को रूहानी लेवल पे आके देख रही हूं। आप वर्ल्ड के पर्सन हो के वर्ल्ड से मशवरा नहीं मांग सकते। ये इसी तरह है, जिस दुश्मन से खुदा ने आपको छुड़ाया, उसी दुश्मन से आप पूछने जा रहे हैं कि अब इस मसले का हल क्या है। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जिस दुश्मन के हाथ से खुदावंद ने आपको छुड़ाया, आप दोबारा उसी दुश्मन से मशवरा लेने जा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। और क्या हो रहा है? डू यू थिंक वो दुश्मन आपको ठीक मशवरा देगा? क्या वो दुश्मन आपको दोबारा असीर नहीं बनाना चाहेगा? वो आपको दोबारा अपना कैदी बनाना चाहता है, दोबारा वर्ल्ड सिस्टम में गिरा के वो आपको कैदी बनाना चाहता है। और आप में से जितने उसका मशवरा मान लेंगे, उसका मशवरा कैसा होगा? उसका मशवरा शुरू में ऐसा लगेगा कि फायदा मिलेगा, लेकिन उसका मशवरा दोबारा से आपको उसके शहर में, उसकी दुनिया में दाखिल कर देगा। और वो आपको कहेगा कि तुम्हारे मसले उस बादशाहत में रह के हल नहीं हो सकते, तुम्हें मेरी जमीन पर, मेरे सिस्टम में सब कुछ मिलेगा और मैं तुम्हारी मदद और रहनुमाई भी करूंगा। सेम काम आदम और हवा ने किया था। उसने हवा को बोला था कि तुम्हारा एक मसला है और उस मसले का हल ये है, और मैं तुम्हें बताता हूं कि ये चीज कितनी बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए, और ये चीज तुम्हारी जिंदगी में कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर देगी। खुदा का कलाम कहता है, अकल नहीं हो जाने के साथ साथ, ये नहीं कह रहा कपड़ों के ब्रांड्स चेंज होने के साथ साथ, जूतों के ब्रांड्स चेंज होने के साथ साथ, रिस्ट वॉच हाई ब्रांड की पहनने के साथ साथ, अच्छा परफ्यूम लगाने के साथ साथ। नो, आप अपने आप को वर्ल्ड सिस्टम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जब आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आप घरों में रोशनी नहीं पहुंचा पा रहे। तभी आपने देखा है, आप सबों से जब मैं बात करती हूँ तो आप सब बहुत, आप लोगों के जिंदगी में अब ये मसले चल रहे हैं कि आप में से किसी को किंगडम की परवाह नहीं है। आप लोग किंगडम के लिए वर्क नहीं कर रहे। मैंने देखा है, शुरू में आप लोग किंगडम के लिए काम करते हैं, अब आप किंगडम के लिए काम नहीं कर रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको असाइनमेंट दी थी कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आप ऐसे शागिर्द बन चुके हैं, खुदा ने आपको शागिर्द बनाने के लिए चुना था। आपने क्या किया? कहते हैं ना रास्ते के लिए रोटी लेना, ना कपड़ा लेना, क्योंकि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा ने नहीं बोला था कि आपने, मैं बहुत जरूरी बात कर लूंगी, मेरी बात गौर से सुनिएगा। खुदा ने नहीं कहा था कि अपने लिए सेल्फ अर्निंग करना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन जो इस जमीन पे आपका तमाम खर्चा है ना, वो भी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर उठा लिया है। और इवन आपके, जब से आप पैदा हुए आखिरी सांस तक जो आपके रोटी पानी का इंतजाम है, वो भी खुदा के हाथ में है। लेकिन आपका इत्तेकाद इतना नहीं है कि आप उससे रोटी पानी कपड़ा और ये सब कुछ रिसीव कर सकें। आपका इत्तेकाद नहीं है। आप अभी भी अपनी लिविंग के लिए अर्न करना चाह रहे हैं। ये इसी तरह है कि आप एक मिशन वर्क पे निकले हैं, लेकिन वो मिशन वर्क में जिस बंदे ने आपको हायर किया है वो आपको कुछ भी नहीं दे रहा, और हर शहर में जाके आपको छोटी छोटी नौकरी करनी पड़ी है ताकि आप उधर शहर में जाके घर भी ले सको, कपड़ा भी ले सको, और पीछे घर वालों को भी कुछ दे सको।
अगर आप में से कोई ऐसी नौकरी करे जिसमें आपको अपने घर वालों को भी खुद देखना है, अपने लिए भी कुछ और सोचना है, आप ऐसी नौकरी करना कभी पसंद नहीं करोगे। आप लोगों का यही खौफ है कि आपने अपने आप को इस चीज में गिरा दिया, और ये खौफ क्या करेगा? ये खौफ आपको वर्ल्ड सिस्टम में ले गया। आपका खौफ किसी शख्स को पसंद करना भी हो सकता है, किसी शख्स को छोड़ना भी हो सकता है, आपका खौफ बीमारी भी हो सकती है। आपके ऊपर कोई सिम्टम्स आए, आपको किसी ने बोला एक बार डॉक्टर को चेक करवा लो, ये चीज ज्यादा खराब भी हो सकती है, और ये उसका जुमला था, और यहां आपका वर्ड फौरन से चोक हो गया। अच्छा चले, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता इस मसले का हल कैसे निकालना है। ओके, तो मैं और ऊंचा बोलती हूँ, ठीक है? तो उसके बाद आप वर्ल्ड सिस्टम में गिर गए। बीमारी ने क्या किया? आपके दिल में फियर आया, और उस फियर ने आपके दिल को फौरन से बोला कि ऐ यसु, हम हलाक हुए जाते हैं, क्या तुझे परवाह नहीं? क्या तुझे परवाह नहीं? हम हलाक हुए जाते हैं। आप भी इस वक्त आप कह रहे हैं क्या खुदा को पता नहीं है कि हमारी ये जरूरतें, क्या खुदा को पता नहीं हमारा ये मसला है, क्या खुदा को पता नहीं हमने फैमिली भी पालनी है? खुदा को सब पता है। वो कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती के 6 बाब में, कहता है जो जंगली सोसन को सलमान बादशाह से भी ज्यादा अच्छे कपड़े पहना सकते ना, वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? कहता है जंगली सोसन ज्यादा ब्यूटीफुल है, और उसके ऊपर जो क्रिएशन का काम हुआ है वो उस जैसा मुलबस सलमान का, सोलोमन बादशाह का कोई एक ड्रेस भी नहीं था। कहता है तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों के मोहताज हो। वो जानता है आपको किस किस चीज की जरूरत है। शैतान ने आपकी जिंदगी में नीड को क्रिएट किया। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया था तो खुदा ने कपड़ों की नीड के साथ नहीं बनाया था। आपको अपने बदन के लिए कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन शैतान ने एक नीड क्रिएट कर दी इस जमीन पे रहते हुए। अब हम नीड वाले सिस्टम में गिर भी गए हैं, तो भी खुदा कहता है अगर तुम नीड वाले सिस्टम में गिर भी गए हो तो तुम अपनी नीड्स उस सिस्टम के थ्रू पूरी करने के बजाय कम टू मी। आदम और हवा ने जब वो नीड में गिर गए, जब वो जरूरत में गिर गए कपड़ों की, सुनिएगा बात मेरी गौर से, जब वो कपड़ों की जरूरत में गिरे तो उन्होंने अपनी तरफ से पत्ते सी कर अपने ऊपर डाले, लेकिन वो पत्ते उनको सर्दी से नहीं बचा सकते थे। वो पत्ते उनको सख्त गर्मी से नहीं बचा सकते थे। वो पत्ते कंफर्टेबल नहीं थे। वो पत्ते कंफर्टेबल नहीं थे। और फिर तो भी खुदा जाके उनके लिए क्या करता है? परफेक्ट लैम्प को ज़बह करके उनके लिए वुलन कोट्स बना देता है। एंड में उन्होंने जो अपने लिए क्रिएट किया वो काम नहीं आया, जो खुदा ने उनके लिए क्रिएट किया वो काम आया। स्टॉप बिल्डिंग दोज रिलेशनशिप्स। किसी की नजर में रिलेशनशिप बिल्ड करना बंद करें कि आपको कोई प्रमोशन मिल जाएगी या आपका कोई काम हल हो जाएगा। जब तक आप टोटली खुदा को अपना सोर्स हर बात के लिए नहीं मान रहे, आप ट्रबल मेकर भी हैं। खुदा इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रास्तबाजी का कलाम आप सुन रहे हैं, उससे सुनने के बाद आप सबके दिलों में तो ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपने जाके कौमों को शागिर्द बनाना है। मेरे साथ एक हवाला खोलें, यहाँ पे लिखा है उसने उठकर हवा को डांटा और पानी को कहा और फिर उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे ये कौन है कि हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं। आपको यीशु मसीह जब इंसान बना तो यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी है कि वो हवा और पानी को थमा सकते हैं। यीशु मसीह आप जैसा इंसान बना था। यीशु मसीह क्या बना था? आप जैसा इंसान बना था।
अब आपके पास अथॉरिटी है, लेकिन अगर आप डर गए तो आप अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकते। अगर आप डर गए तो जो लोग आपको मशवरा देंगे आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, अगर यीशु मसीह उस सिचुएशन में डर जाता तो यीशु मसीह कहता, ओहो क्या करना है, बताओ, मैं तो कभी पानी, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं तो भाई, मेरा बाप तो भाई लकड़ियों का काम करता है, मुझे क्या पता पानी का क्या सिस्टम है और कौन सी तरफ की हवा चल रही है। अगर तुम लोग मल्हारे थे या तुम फिशरमैन थे या तुम बोट पर्सन थे, तुम्हें नहीं पता था कौन सा मौसम है और किस मौसम में तूफान आ सकता है। यीशु मसीह ये पूछा, लेकिन यीशु मसीह ने ये सारी बातें नहीं पूछी। आप खौफ की वजह से इतने सवालात में पड़ते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, लेकिन आप सबों के लिए खुदा कह रहे हैं बी स्टिल नो रैम को। 4 दिन लगेंगे बी स्टिल होने में, क्योंकि 4 दिन में आपका बदन दर्द करेगा, क्योंकि अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन 4 दिन बाद आप देखेंगे आप खुदा को सुनने लग जाए। खुदा बोलने में देर नहीं करता, जैसे खुदा में लिखा है ना, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने वादों में देर नहीं करता, जैसा बात समझते हैं। खुदा का एक ये भी वादा है कि जब हम उसको पुकारेंगे तो वो हमें जवाब देगा। ऐसा ही है, एक वादा कानवे ज़बूर में लिखा है ना कि मैं उसे पुकारूंगा और वो मुझे जवाब देगा। तो ये अगर उसका एक वादा है तो वो कहता है कि मैं अपने वादों में देर नहीं करता, जैसे बात समझते हैं। आप अगर खुदा को सुनना शुरू करेंगे तो वो कोई 1 साल बाद आपसे बोलना नहीं शुरू करेगा। मैं अपने घर में, मैं आपको सच बता, मैं 15 मिनट भी खामोश बैठ जाऊँ ना, बूम, खुदा बोलने लग जाता। सच बता रही हूँ। 1 घंटा बैठ जाऊँ, खुदा पूरा सरमन दे देता है मुझे। 2 दिन बैठ जाऊंगी तो खुदा उससे भी ज्यादा कलाम करने लग जाता। खुदा रास्ते क्लियर कर देता है, बंधन टूट जाते हैं, योक ऑफ बॉन्डेजेस टूट जाती हैं, ख्यालात चेंज हो जाते हैं, मेरा माइंडसेट एकदम से डिफरेंट तरीके से काम करने लग जाता है। जो चीज पहले मुझे डरा रही होती है, मुझे वो अपने पाँव के नीचे नजर आ रही होती है, और मैं उस कलाम पे खड़ी होती हूँ कि सब कुछ उसने यीशु मसीह के कदमों के नीचे कर लिया, और वो यीशु मसीह अगर मेरे अंदर रह रहा है तो सब कुछ मेरे कदमों के नीचे है। और इस तरह मैं पावर में मूव करने लगा। अगर आपको थॉट्स का चैलेंज है, थॉट्स का चैलेंज तो मुझे भी है, बट मैं थॉट्स को एनिमी की थॉट्स समझ के फाइट करती हूँ। आप उनको रियलिस्टिक थॉट समझ के ओन कर लो। आप उनको रियलिस्टिक बन के आप कहते हैं ये भी तो जिंदगी की सच्चाइयां हैं, और आप उनको ओन कर। जिंदगी कोई सच्चाइयां नहीं, सिर्फ खुदा का कलाम सच्चा है, और कोई भी फिक्र जो खुदा के कलाम से बाहर है वो झूठ है, वो सरासर झूठ है। मेरे साथ निकालें एक हवाला निकाले मेरे साथ निकाले लूका उसका 9 बाब, लूका की अंजील उसका 9 बाब, लूका की अंजील उसका 9 बाब। मैं सच बता रही हूँ कि मैंने उन लोगों को आगे लेकर नहीं चलना जो दुनिया के हमशक्ल, क्योंकि आप एक वक्त में 2 उस्तादों की खिदमत नहीं कर सकते। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कलाम कहता है तुम एक वक्त में 2 उस्तादों की खिदमत नहीं, एक का साथ दोगे और दूसरे के खिलाफ, दूसरे के साथ दोगे तो पहले के खिलाफ। यहाँ पर लिखा है 9 बाब, निकालिए आप सबने, थम्स अप कर सकते हैं। 9 बाब में लिखा है, कहता है फिर उसने पहली आयत से पढ़ी हूँ, कहता है फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरुओं पर इख्तियार बख्शा। ये अब आप उन 12 में से, मेरी बात गौर से सुनिएगा, आप वो 12 हैं, क्योंकि KCPH एक स्कूल है और वो डिसाइपल्स बनाता है, लेकिन आप सब ने डिसाइपल्स बनना पसंद नहीं, और जो डिसाइपल नहीं है वो मेरे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैं डिसाइपल्स को ट्रेन कर रही हूँ। मैं ऐसे हर गुजरते हुए बंदे को ट्रेन नहीं कर। अगर मुझे गुजरते हुए लोगों को ट्रेन करना हो ना, मैं बहुत सारे क्रिश्चियन टाउन्स हैं जहाँ पर जाके मैं अपनी मीटिंग कंडक्ट कर सकती हूँ। 2 देगे दूंगी चावलों की, लोग मेरे पास बहुत इकट्ठे हो जाएंगे और मैं प्रीच कर सकती, हफ्ते में 1 मीटिंग में रख सकती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फोकस्ड होके कुछ लोगों पे काम करना चाहती हूँ जो जाके आगे अंजील की मुनादी ऐसे करें कि गीली लकड़ियों को भी आग लगे, जिनके दिलों में गीली लकड़ियां भी ना, क्योंकि गीली लकड़ी को आग लगाना बहुत मुश्किल होता है। गीली लकड़ी को आग नहीं लगती, सूखी लकड़ियों को आग लगती है। लेकिन जब आप पाक रूह से भरे होते हैं, खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, ग्रेस गॉस्पेल का कलाम आपके पास होता है, तो किसी के दिल की लकड़ियां अगर गीली भी होंगी ना, तो जिस तरह एलाइजा ने आसमान से आग मंगवाई थी और उसने उस आग ने गीली लकड़ियों को भी भस्म कर दिया था, तो वो भी उनके दिल के ख्यालात को चेंज कर। मैं ऐसे लोग क्या जो दुनिया के हमशक्ल नहीं, जो वर्ल्ड सिस्टम से जो नफरत करते हैं, वर्ल्ड सिस्टम, खुदा के सिस्टम को वेलकम। यहाँ पर लिखा है फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें बदरुओं पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी। आपके पास इस वक्त बीमारियों को दूर करने की कुदरत है। आपका बच्चा बीमार है, आपके पास कुदरत और इख्तियार है। खुदा ने आपको ये इख्तियार दिया। आप खुद बीमार है, आपके पास कुदरत और इख्तियार है। क्या आपके पास इख्तियार नहीं कि आप अपने बदन को मोटा भी रख सकते हैं और पतला भी रख सकते हैं? अगर आप अपने मुंह को काबू में रखें, टेस्ट बर्ड्स को कंट्रोल कर लें, तो आप अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही देखिए, मुंह का जो हमारा मुंह है वो छोटा सा है, लेकिन इसके थ्रू जो अंदर जाता है वो हमें फुलाता जाता है, मोटा कर। इसी तरह जब हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं, जिन चीजों में मेडिटेट करते हैं, वो हमें
हमें लगती बड़ी मामूली है, लेकिन वो हमारे अंदर सीड सो कर रही है, या तो डेथ की या तो लाइफ। आप देख लें कि आप किसको देख रहे हैं और आप कौन से दरख्तों में से फल तोड़ के खा रहे हैं। कहते हैं और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने, खुदा ने आपको ये असाइनमेंट दी है, लेकिन जिनको दिए, जो बुलाए तो सारे गए, मैं आपको बताऊं बुलाए सारे गए, लेकिन कुछ लोग अपनी कॉलिंग को पहचान रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहचान रहे, कुछ लोग सिर्फ इस बात में बिजी हैं कि आगे क्या होगा। और मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकता। आगे क्या, इवन मैंने भी अपने नेक्स्ट कल में क्या होना है मैंने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि वो कहता है आज के लिए आज का गम ही है। वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही, खुदा कह रहे हैं आज के लिए आज बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। बीमार रूहानी भी हो सकते हैं और जिस्मानी भी हो सकते हैं। खुदा ने आपको इस एजेंडा पे भेजा। बैंकर्स तो बहुत सारे हैं इस जमीन पर, लॉयर्स भी बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, इंजीनियर्स भी बहुत सारे हैं, ऑफिस क्लर्क्स भी बहुत सारे हैं, टीचर्स भी बहुत सारे हैं। और ये दुनिया का सिस्टम चलता रहे। दुनिया को किसी एक और बैंकर, एक और उसकी जरूरत नहीं है। आप बैंकर हो सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप बैंकर होके डिवाइन विजडम में चल रहे हैं ताकि आप इकोनॉमिक कंडीशन को हमेशा के लिए चेंज कर सके? क्या आप ऐसे बैंकर हैं? क्योंकि यूसुफ जब फूड मिनिस्टर बना, उससे पहले भी बहुत सारे फूड मिनिस्टर होंगे, क्योंकि गला कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जब यूसुफ फूड मिनिस्टर बना तो मिस्र में कांस्टेंट दौलत आती गई। क्या आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, क्या आप उसके अंदर भी खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं और आप खुदा से इंस्ट्रक्शंस ले लेके काम कर रहे हैं? अगर नहीं, इसका मतलब है कि आपने अपना खुदा वाली रूप एक जगह रखा है और बाहर वाला रूप आपने एक जगह, और आप दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज में चल रहे हैं। तभी जब आप ईमान रखने के लिए खड़े होते हैं तो आपका दिल गवाही नहीं देता, क्योंकि आपका दिल 9 से 7 एक डिफरेंट शख्स होता है। गौर कीजिएगा मेरी बात। अगर आप कॉलेज में आते हैं तो 8 से 2 आपका दिल एक डिफरेंट शख्स। अगर आप नौकरी भी जाते हैं तो 5 से 9 आपका दिल एक डिफरेंट शख्स है। तभी आपके दिल को समझ नहीं आता कि कभी ये बन जाता है और कभी ये बन जाता है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आपका दिल किधर है? आपका ध्यान, आपका जोरे बाजू कौन है? आपके महीने में आखिर में आने वाला चेक आपका जोरे बाजू है या खुदा आपका जोरे? कौन आपका जोरे? कहता है यहाँ पे, और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना। आप वरिड है, चीजें कैसे काम करेंगी? अगर सिर्फ खुदा की बात मान कर चलना शुरू कर दिया तो चीजें कैसे काम करेंगी? और मैं आपको बताना चाहती हूँ, टोटल प्रोविजन खुदा की तरफ से तब होता है जब आप टोटल खुदा को सबमिट करें। ये जो खुदा उनको ऑफर दे रहा है वो तब ऑफर दे रहा है जब वो प्रॉपर किंगडम सिटीजन बने। कहता है ना राह के लिए, मैं किसी को कंडेम नहीं करी कि वो नौकरी अगर कोई कर रहा है तो नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या आप किस किस्म की नौकरी कर रहे हैं? क्या आप नौकरी में भी खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं? क्या आप नौकरी में वाकई वर्ल्ड सिस्टम के नौकर बन चुके हैं? ये पॉइंट है। क्या आप नौकरी करते हुए वर्ल्ड सिस्टम के नौकर बन चुके हैं, या नौकरी करते हुए भी आप उनको भी चेंज प्रोड्यूस कर? क्या पता आप अंजील ना प्रीच कर सकते? बस हम थोड़ी देर अच्छा करने के लिए भेजा और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रुपया। क्या? रुपया भी ना लेना। खुदा आपसे जब किंगडम का काम लेगा ना तो उसके लिए आपको अपनी नौकरी में से अपने बच्चों का पेट काट काट के चर्च का काम नहीं करने पड़ेंगे। सुन लीजिए, खुदा आपसे आपके रुपए में काम नहीं कराएगा। खुदा आपको अपनी तरफ से बहुत रुपया देगा, उसमें से आपके काम भी निकल जाएंगे और खुदा का काम भी निकल जाएगा। मैं इस खुदा पर ईमान रख। सुन रहे हैं? हम अपनी कलीसियाओं में क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं? बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम ग्रीड कर रहे हैं पैसे के पीछे भाग। अगर आप मुझे ग्रीडी समझते हैं ना कि हम पैसे की गॉसिप बीच कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ग्रीडी आप हैं, क्योंकि मैं तो पैसे के लिए घर से निकल नहीं रही, लेकिन आप पैसे के लिए 9 से 7 निकल रहे। बात समझ आइए? तो ग्रीडी कौन हुआ? पैसे के पीछे कौन भाग रहे? खुदा से मांगना ग्रीडी होना नहीं है। ये मैं KCPH के लोगों के लिए नहीं कह रही, ये जब हमें यूट्यूब पे सुना जाएगा मैं उनके लिए कह रही हूँ। KCPH के किसी बच्चे के लिए, किसी इंसान के लिए ये नहीं है। ये स्टेटमेंट मैंने KCPH के लोगों के लिए नहीं, ये मैंने बाहर जो लोग मुझे सुनेंगे उनके लिए। आप गॉस्पेल प्रीचर्स, जो मैं ट्रूथ सिखा रही हूँ, अगर आप कहेंगे ना कि हम लोग ग्रीडी हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, रोज पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं, हम तो खुदा के पीछे भाग रहे हैं। मेरी बात समझ आई? इस पॉइंट का समझ आया? पर्सपेक्टिव मेरा थम्स अप कीजिए अगर आपको समझ आई। अगर सबको समझ आई, आगे सुनिएगा। कहता है ना रुपया, ना 2-2 कुर्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना, और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना ताकि उन पर गवाही हो। यानी कि मैं भी ऐसे लोगों से लाताल्लुकी करना चाहती हूँ जो किंगडम का काम नहीं करना चाहते, ताकि जब उनकी जिंदगी में प्रॉपर चीजें फिक्स ना हो तो लोग ये ना कहें कि ये तो KCPH का स्टूडेंट है तो भी इसकी जिंदगी हल नहीं हो रही। ये सुने आगे क्या कहते हैं। बस वो रवाना होकर गाँव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते। क्या आप खुशखबरी सुनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या आप वर्ल्ड सिस्टम के मुताबिक परफेक्ट बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड? ये सब के लिए आपके लिए कलाम था। खौफ आपको कहेगा ये रुपया भी ले ले, और जब आपके पास रुपया नहीं होगा तो आप उस रुपए के लिए क्या करोगे? आप खुशखबरी के काम को नीचे रख के आप रुपए की पैसे की फिक्र में निकल जाओ। समझ आ रही? जब से मैंने अपनी नौकरी, क्योंकि जो काम खुदा की तरफ से, खुदा उसके लिए कह रहा है उस काम के लिए तू अपनी तरफ से ना लाठी ले, ना रोटी ले, ना फलाना ले, ना कुछ ले। उस काम के लिए तो कुछ ना ले, क्योंकि वो मेरा काम है, मैं करवाऊंगा। देखिए एक बात, अगर मैं आपको कहती हूँ आपने जाके मेरा काम करना है और मैं आपको पे
نہ کروں تو میں بری مالک، لیکن اگر میں کام آپ سے اپنا کروا رہی ہوں، جب کمپنی والے آپ کو کہتے ہیں جاؤ ہماری کمپنی کی پروموشن کرو، جب انسٹاگرام پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی برانڈ کے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ برانڈ والے ان کو پے کرتے نا ان کی باڈی یوز کرنے کی، ان کی پکچرز یوز کرنے کی، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر وہ ان کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کی کوئی چیز پہنتے ہیں تو وہ ان کو وہ بھی دے دیتے ہیں اور ان کو پیسے بھی بھیجتے ہیں، تھینک یو آپ نے ہماری چیز کی پروموشن۔ جب آپ خدا کی چیز کی پروموشن کر رہے ہیں خوشخبری کی، تو خدا آپ کو سب کچھ دے گا۔ اگر زمین کے دنیا کے لوگوں کو یہ اصول پتا ہے کہ پروموشن کرانے کے لیے جسے ہم پروموشن کروا رہے ہیں اس کو ہمیں سپلائی دینا ہے، تو خدا کیوں نہیں جانتا کہ اگر اس نے اپنے کنگڈم کی پروموشن کروانی ہے تو وہ آپ کو ہر ایک چیز کا سپلائی دے گا۔ آمین۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو خدا کے کلام نے ہٹ کیا ہوگا، اس نے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہوگا، آپ کا مائنڈ تبدیل ہوا ہوگا، خدا میں بڑھتے جائے اور کوئی بھی ہتھیار جو صادق کے خلاف بنایا جائے وہ کبھی کامیاب نہ۔ آمین۔ خدا